Well, 3rd Feb it is, just 2 days before the big battle that takes place in the national capital. Also, very importantly, this is today is also the last day of campaigning, and as the all political parties are gearing up for the mega battle that's going to take place. Many parties. You talk about Aam Aadmi Party, you talk about BJP, you talk about Congress. Everyone, is going talking to the people. Doing the press conferences, and also we are at this very place, which is the most talked about seat, which is the most controversial. The VIP seat that we say is the very New Delhi Vidhan Sabha, and also I'm at Sarojini Nagar Market, which is also famous for all the things you get. And people say you get all kinds of stuff here. You talk about clothing, you talk about makeup products, you get everything here. And as the national capital gears up also for this Vidhan Sabha elections that is taking place in this Vidhan Sabha, we are at this bustling market, which is also called the Sarojini Nagar Market, and here the fight is between a triangular fight is happening. This triangular fight is also regarded as a VIP seat, where the chief minister, who gave his powers to Atishi to become the chief minister, Arvind Kejriwal, is contesting from this seat from Aam Aadmi Party, sitting CM and also MLA. Then from BJP, we have Parvesh Verma, another very VIP candidate. And from Congress, we have Sandeep Dixit. So you see this triangular fight which is taking place here at this Vidhan Sabha. It gets very important, it gets very controversial and very important as well, because the Chief Minister himself is also a candidate from here. Parvesh Verma from BJP is also here. So you can actually understand how important this Vidhan Sabha becomes, and we are also joined by a few people who will give us a perspective about the fact that who they think can be a probable candidate, can be the winning candidate, what is the work that has been done, if there is any work that has been done. Let me talk to the people. Sir, पहले आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। विनोद चौधरी हूँ, नई दिल्ली से। विनोद जी, क्या लग रहा है? टफ कंपटीशन, आज लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है, 5th से वोटिंग शुरू हो जाएगी, फिर 8th को रिजल्ट्स है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली में इस बार परिवर्तन की संभावना है, और नई दिल्ली के लोगों ने एक मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन वो चाहते हैं। और उस परिवर्तन में एक कारण है, क्योंकि दिल्ली जो गैस का चैम्बर बना हुआ है उसका सॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ, और आज भी दिल्ली वासियों को जो पानी मिल रहा है पीने के लिए, वो शुद्ध मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल सरकार बुनियादी ज़रूरतों को, जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई है। न पानी मिल रहा है, न रोड अच्छे हैं, न ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी है। अगर बारिश हो जाए तो दिल्ली में पानी ही पानी घूमता है। तो इस तरह से पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और पहले धुआं पंजाब से आता था, अब हरियाणा और यूपी से आता है। तो पॉल्यूशन पैदा दिल्ली से होता है, लेकिन ठिकरा दूसरे राज्यों पर फोड़ा जाता है। दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई है। नई दिल्ली में परिवर्तन निश्चित है, और जो मुझे लग रहा है, जितना मैं घूमा हूँ, जितना मेरी लोगों से बात हुई है, जो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से दिल्ली में परिवर्तन होगा, और नई दिल्ली के दिल में प्रवेश वर्मा हैं। और मुझे लगता है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उसका एक कारण भी है, 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए थे, कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जो भी काम करने के लिए होते हैं तो वो काम करते नहीं है, वो मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। न मैं करूंगा, न मैं करने दूंगा, और पब्लिक को इसी तरह बेवकूफ बनाऊंगा। अब जनता, नई दिल्ली की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। नई दिल्ली के दिल में प्रवेश वर्मा जी बस चुके हैं, और आने वाली 8 तारीख को यहाँ परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन होके रहेगा। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि यमुना एक बहुत फेमस एक इशू हो गया था, जहां यमुना में झाग, हमेशा हम भी कवर कर रहे थे, झाग था, पोल्यूशन का लेवल था, छठ पूजा के समय लोग बीमार पड़ रहे थे। अब आम आदमी पार्टी ने ये अलेज किया है कि बीजेपी ने पॉइजन डाला है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन हो? हम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर क्या सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉइजन डाला है? 10 साल के शासन में उनका पहला वादा यही था कि मैं यमुना जी को स्वच्छ कर दूंगा, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराऊंगा। 10 साल की सरकार में वो ये काम नहीं कर पाई। और दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था है, एक बारिश होती है पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। आपने देखा होगा इस बार बारिश हुई, क्या हालात नई दिल्ली के बन गए।
नई दिल्ली जिसको पूरे देश की राजधानी कहा जाता है, इतने बुरे हालात बन गए कि आप पूछिए मत। देश से जब लोग आए तो वो दिल्ली को ये सोच के आए थे कि दिल्ली में हम घूमने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी दिल्ली होगी, लेकिन वो ये मैसेज दे के गए कि दिल्ली से तो बेटर हमारा शहर है। आज दिल्ली को नरक बनाने का अगर काम किया है तो इस केजरीवाल की सरकार ने किया है। झूठे वायदे और जुमले के अलावा केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को कुछ दे नहीं पाए। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि बीजेपी ने, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी ने बोला हम 2500 देंगे, कांग्रेस ने भी बोला प्यारी दीदी योजना में हम 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी ने बोला 2100 देंगे। आपके हिसाब से किनके वादे जो है बेबुनियाद है और किनके वादे लग रहे हैं कि होने वाला ये काम? हमने जो वायदा किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया उसको पूरी तरह से निभाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि धारा 370 खत्म करेंगे तो धारा 370 खत्म की। आयुष्मान कार्ड लाएंगे तो आयुष्मान कार्ड लेके आई भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हर घर जल नल योजना पूरे देश में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जारी है, क्योंकि वो दिल्ली में लागू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी है। दूसरी बात, देश में 7.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने कि जो गरीब लोग थे उनको पूरे देश में, लेकिन वो दिल्ली में नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? कि केजरीवाल सरकार नहीं चाहती किसी झुग्गी वाले का पक्का मकान हो। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि इन लोगों को हम जितना गरीब रखेंगे ये हमारे वोटर बने रहेंगे, इसलिए उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कोई भी जीवन स्तर उठाने के लिए काम नहीं किया है। गरीब को सिर्फ राशन पे और चुनावों में इल्लीगल लालच देकर छोड़ दिया गया है केजरीवाल सरकार ने। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करती है उस वायदे को पूरी तरह से निभाती है और वायदा पहले भी निभाएं। और नई दिल्ली में जो वायदे किए गए जनता से वो वादा 100% भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। नई दिल्ली से अगर प्रवेश वर्मा जी जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये निश्चित है कि जो वायदा है वो भाजपा निभाएगी। और ये तो आने वाला समय बताएगा। 10 साल में हमने जितने केजरीवाल ने जितने वायदे किए, शायद मैं समझता हूँ उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। दिल्ली में शुद्ध पानी नहीं है, गैस का चैम्बर है, रोड खराब है, ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से दिल्ली की ध्वस्त हो चुकी है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो दिल्ली की जनता को गुमराह कर सकें। बहुत उन्होंने गुमराह करने का दिल्ली की जनता को प्रयास किया। और मेरा एक आखिरी सवाल यही रहेगा आपके हिसाब से कि क्या लग रहा है फाइट किन दो पार्टियों के बीच में है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे वायदे, कोई भी वायदा पूरा न करके और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को फोड़ने का काम किया है। कोई उन्होंने वायदा नहीं किया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। केजरीवाल तो दिल्ली की टक्कर से ही बाहर हो गए, क्योंकि जनता में एक रिएक्शन है केजरीवाल जी के प्रति, और वो रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आप झूठ की एक मशीन हो, सुबह से झूठ बोलना स्टार्ट करते हो और शाम तक झूठ, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हो। जितना झूठ उन्होंने 10-15 सालों में बोला है, मैं नहीं समझता कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी नेता ने जितना झूठ बोला होगा। उस झूठ को दिल्ली की जनता समझ गई है और दिल्ली की जनता उस झूठ को 5 तारीख को दिल्ली की जनता उनको बता देगी कि अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर आपसे भी जानने का कोशिश करने का, और हम चलते चलते भी बात कर सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है न्यू दिल्ली में, क्या स्टैंडिंग है, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, एमएलए की बात करें, या काम नहीं हुआ है? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की गारंटी ली है, क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है, सबके काम करने हैं, मौलिक अधिकार उनको दिलाने हैं। कल जो रैली में मोदी जी ने बोला हर झुग्गी वाले को, पटरी वाले को रोजगार मिलेगा, उसका मौलिक अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री आज पूरा विश्व उनके पीछे है। और प्रवेश वर्मा जी एक उन्होंने ऐसे कैंडिडेट यहाँ से उतारे हैं, वो हमारे अधूरे काम पूरे करेंगे। जैसे रोडों का यहाँ बहुत समस्या है, बिजली के तारों का एमसीडी में समस्या है, वो दिल्ली के सीएम उनको बनाए। मैं मोदी जी से कहूँगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, मोदी जैसा कोई नहीं। उन्होंने जो घोषणा करी है, जहाँ पटरी वहीं दुकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और सबके पास रोजगार होगा, सबके मौलिक अधिकार मिलेंगे। हम सभी देशवासी, किसी के पास
रोजगार की कोई कमी नहीं होगी, सबके पास उसके मौलिक अधिकार मिलेंगे और देश को हमने विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं। आज दुनिया की नज़र है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जैसा कोई नहीं। एक और बात बताइए, अगर हम एमएलए की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से पूछे तो आप 10 में से केजरीवाल जी को, जो सीएम भी रह चुके हैं, एमएलए भी थे, उनको कितना दोगे आप? और कंपटीशन टफ फाइट अगर हम पूछे किस दोनों पार्टियों के बीच में? देखो, केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, वो हमारा पैसा, हमारा जनता का पैसा बर्बाद करा उन्होंने। एक के साथ एक फ्री बड़ी बांटी, उसमें तो वो बहुत आगे निकले। अरे हमारा पैसा, जनता का पैसा से आपने शीश महल बनाया और हमारे अधूरे काम, इनको वेंडर्स को पक्की दुकानें बना के देनी थी, इनके मौलिक अधिकार देने थे, रोडों की समस्या थी, बिजली की समस्या। भाई ठीक है, 200 यूनिट उन्होंने फ्री करा, उन लोगों को मिलता है जिनके मकान अपने हैं। किराएदार तो बेचारा अब 10 रुपये हो गया, 8 रुपये हो गया। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बड़े दिखाए, पर हमारे जो अब मोदी जी ने गारंटी ली है पूरे देश की, आज पूरे विश्व की नज़र है उन पे, अधूरे काम सबके पूरे करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, सबके पास रोजगार होगा, देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। आज हमारे पढ़े लिखे युवा, उनको रोजगार चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली है। कल जो भाषण दिया, मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में बनाई हुई है। यहाँ FRS कैमरे लगे हुए हैं, किसी ने कोई क्राइम करा होगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये सरोजनी नगर दिल्ली का दिल है। ये व्यवस्था पहले लाल किले थी, अब सरोजनी नगर है। SHO, ACP, DCP सब मुआयना करते हैं। दिल्ली पुलिस सिविल में है, वर्दी में है, सारी एजेंसियां हमें सहयोग कर रही हैं। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में कमी है बेरोजगारी की, रोडों की समस्या, बिजली की तारों की समस्या। ये हमें सबको, जो महिला सुरक्षा है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान है। ठीक है, महिलाओं के लिए उन्होंने बसों में बड़ा फ्री करा। सीनियर सिटीजन ने क्या कसूर करा भाई, उस सीनियर सिटीजन को भी बस में फ्री मिलना चाहिए। और एक और है, रेलवे का जो है सीनियर सिटीजन को जो कंस्ट्रक्शन मिलता था वो भी लागू, मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना ही कर सकता हूँ वो भी लागू करें। और आपके इस जज्बे को मैं सलाम कर रहा हूँ, आपने ले लिया पूरे देश की गारंटी। विकसित भारत हमें बनाना है, देश को आगे ले जाना है और दुनिया को दिखाना है मोदी जैसा कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो येस व्यूअर्स, बिफोर वी go on to talk to more people, I'll just pan and show you, I'll request my camera person to show you, to pan and also show to how this place looks, how bustling this place looks, and also to the fact that let me talk to you also about these the fight also, the triangular fight, the main fight also that is taking place in this very Vidhan Sabha, where Arvind Kejriwal is also being contested here. From this Vidhan Sabha, you have Parvesh Verma from BJP, and Congress also is here, who is contesting, Sandeep Dixit rather, is contesting from Congress as well, and we'll also be talking to more people. Sir, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है, ये क्या यहाँ का स्थिति है, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है, क्या यहाँ का माहौल है? यहाँ के माहौल बीजेपी के फेवर में बहुत बढ़िया है और यहाँ के जो वोटर मतदाता हैं वो प्रवेश वर्मा जी को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। अब बीजेपी की सरकार आते ही हम रेहड़ी पटरी वालों का, प्रधानमंत्री जी ने कहा घोषणा में कि हम उन्हें वहीं दुकान जहां मकान वहीं दुकान करेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है और प्रवेश वर्मा जी को हम जिताएंगे नई दिल्ली विधानसभा से। और केजरीवाल जी का काम कैसा रहा है, क्योंकि वो सीएम भी रह चुके हैं, जबकि फिर भी उन्होंने उसके बाद अतिशी जी को दे दिया था सीएम का पद संभालने के लिए। आपके हिसाब से केजरीवाल जी का काम कैसा रहा है? केजरीवाल जी ने जब आए थे सत्ता में तभी बोला था कि हम विदेश के तरीक़ों से रेहड़ी पटरी वालों का भला करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने 10 साल में रेहड़ी पटरी वाले के लिए कोई भला नहीं करा और बिल्कुल नहीं करा। गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं दिया और रेहड़ी पटरी वाले के खासकर कोई भला नहीं करा उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वील जस्ट गो एंड टॉक टू मोर पीपल देयर। सर, आपसे बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है, कौन जीतने वाला है, काम कैसा रहा है? काम तो बहुत अच्छे नहीं रहे। काम को तो विकास देखें, प्रधानमंत्री ने जो बजट पेश किया उन्होंने आम जनता के लिए 12 लाख रुपए दिए, 12,75,000, मतलब उसका टैक्स नहीं लगेगा। और
बाकी नई दिल्ली विधानसभा से हमारे प्रवेश वर्मा को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं, लड़ाई में कोई है भी नहीं। अब प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा से। और अगर हम आपकी बात करें, कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में? कंपटीशन तो दो के बीच में है, हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं, बाकी ASCM केजरीवाल जी हैं, प्रवेश वर्मा जी, बाकी कांग्रेस से भी हैं, संदीप दीक्षित। हाँ संदीप दीक्षित भी हैं। लेकिन लड़ाई प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा से बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा से जीत भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है यहाँ कौन जीतने वाला है? काम कैसा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का? काम किया है उन्होंने या सिर्फ वादे किए गए हैं? काम हुआ है आपके हिसाब से? कुछ काम नहीं हुआ है सर, जीरो काम है। विकास के मामले में तो बिल्कुल जीरो है केजरीवाल सरकार सर। कोई काम नहीं किए हैं, ये मात्र लॉलीपॉप दिए हैं पब्लिक को, दिल्ली पब्लिक को गुमराह किए हैं, बाकी एक पैसे का काम। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से तो हम इनको 0 नंबर देंगे। ये कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में? कांग्रेस में और बीजेपी में ही है सर। कांग्रेस और बीजेपी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विल आल्सो बी टॉकिंग टू, rather we are attempting to talk to more people, even though yes there are few people who will be hesitant to talk about. सर, आपसे जानने का कोशिश करेंगे, आप ने काफ़ी एक्सपीरियंस, आपने काफ़ी इलेक्शन देखी होगी, आप भी वोटर रहे होंगे आपके हिसाब से। मेरा नाम रूप किशोर है। हाँ, रूप किशोर जी, आप बताइए कैसा काम रहा है आप? ये तहबाजारी है मेरी यहाँ पे, थरेजा वेरीफाई तहबाजारी है, सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई। तो आप ये बताइए काम कैसा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का? बिल्कुल काम नहीं रहा है। पहले हम सुखी थे, इनसे पहले इनको आने के बाद हमें परेशानी है। किराया हम पे बढ़ा दिया गया है और हमें सुविधा कोई दी नहीं गई है। हमारी उम्र ऐसे ही बगैर पंखा के, बगैर पानी के, बगैर सुविधा के ही बीती जा रही है। और अगर हम आपको पूछे कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में कंपटीशन आपके हिसाब से लग रहा है होने वाला है? कॉम्पिटिशन तो अब के होगा नहीं, अब के तो ज़्यादातर बीजेपी का ही है उसका, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं, धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया, तो इनका तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। अब काम नहीं हुआ है आपके? काम नहीं हुआ कुछ भी। 10 में से कितना मार्क्स देंगे? एक भी शून्य दूंगा मैं इनको, 0 देंगे? 0 दूंगा। और उल्टा किया है इन्होंने। 0 क्यों देंगे? 0 इसलिए दूंगा कि पब्लिक का पैसा भी वो उसमें अपने कामों में लगा दिया, अपनी सुख सुविधा में लगा दिया, ऐशो आराम के लिए लगाया। जबकि कोरोना चल रहा था उस टाइम पे दवाई की ज़रूरत थी, ये वहाँ पे मकान महल बनवा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, नई दिल्ली विधानसभा VIP सीट माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी CM रह चुके हैं, फिर से फाइट कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी है, संदीप दीक्षित है। आपके हिसाब से काम कैसा रहा है? मैं पकड़। हाँ, संदीप दीक्षित जी कुछ अभी नए आए हैं, इनको तो कोई विशेष वो नहीं है। जैसे प्रवेश वर्मा जी है तो इन्होंने चेहरे पे अच्छे हैं जो काम करेंगे। जैसे केजरीवाल जी हैं, इन्होंने तो काम बहुत अच्छे वादे किए हैं, लेकिन आज इनके विद्यालय में जाके देखो तो वादा करते हैं कि मैं विद्यालय बहुत अच्छा बनाया हूँ, लेकिन उनमें पानी चूता, बच्चे जब किताब लेके जाते हैं तो किताबें भीग जाती हैं। ऐसे काम किए हैं कि इन्होंने बच्चों की किताबें सारी भीग जाती हैं, लेकिन काम अच्छे कर रहे हैं। 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 0 दे रहे हैं इनको। 0? 0 क्यों 0 क्यों? 0 इतने बढ़िया काम किए हैं, इसके लिए 0 है ये। अच्छा, और क्या लग रहा है फ्री कहते हैं, लाइटें फ्री, किराएदारों के लिए कुछ नहीं है। जो किराएदार हैं इनके लिए कोई ना लाइट फ्री है ना पानी फ्री है, इनको सब देना है। कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में? कंपटीशन जो है प्रवेश वर्मा जी के और दीक्षित जी के है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो येस व्यूअर्स, आई विल आल्सो बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू रादर शो यू दिस एंटायर bustling crowd. You see a lot of people, different walks of life. They are all walking, they are trying to buy something. You see this entire vibe becomes very different. Also there's election mood also that is there. The election season is also here, where there are many people who will be rather attempting to talk. There will be many people who will rather be hesitant also to talk, and also we are joined by few other people also who will give a perspective on who is winning and who is not, and who will be wanting to speak. सर, आपसे जानने का कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है? इलेक्शन मूड है, कौन जीतने वाला है? काम हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल सही है। सही है, काम हुआ है आपके हिसाब से? बढ़िया हुआ है। अच्छा, लेडीज़ लोगों को फ़ायदा है बहुत। सिर्फ लेडीज़ लोगों को ही फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है? लोगों को कौन सा फ़ायदा है बताओ? लेडीज़ का ही फ़ायदा है, और किसका फ़ायदा? तो आपके हिसाब से 10 में से केजरीवाल जी को कितना नंबर देंगे? हमारे हिसाब से तो पता नहीं भाई कितने आप मिलेगा। तो वोटर हो। वो तो लेडीज़ लोग करेंगे फैसला। आपका फैसला क्या रहेगा? हम कुछ नहीं कर सकते भाई। वोट तो कर सकते हो, वोटिंग राइट तो है आपके पास।
तो चलिए आपके हिसाब से जो सही लगे आप उनको वोट देना ज़रूर। आप सो यू नो देयर आर मेनी पीपल। सर आपसे भी जानने का कोशिश करें, आप बता रहे थे आपके हिसाब से काम हुआ है? सर हमारे हिसाब से एक पैसे का काम नहीं हुआ काम नहीं है। हुआ। जो महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवा रहे हैं वो हम जनता के ऊपर कर्ज लाद रहे हैं। जो कुछ कर रहा है मोदी सरकार कर रहा है। 15 साल हुआ भूल, अब की खिलेगा कमल का फूल। जो कुछ किया है देश में मोदी सरकार ही किया है। 10 में से कितना मार्क्स देंगे केजरीवाल? केजरीवाल को 0 में 0 मार्क देंगे। 0। और कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में? अब की बारी कमल की पारी। 15 साल जनता से हुआ भूल, अब की खिलेगा कमल का फूल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। We'll also be attempting to talk to more people who was here. You know, he has a shop also. You can see, you know, he sells all kinds of sari, suits, gown, lehenga. You know, this is the beauty of this very place, that is Sarojini Nagar Market, where you get all types of you know things. You get clothes, you get makeup products, you have beauty products, you have all kinds of stuff that people come here to buy in a cheaper rate. सर आपसे जानने का कोशिश करेंगे, फाइट किन दो पार्टियों के बीच में है और आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल इज ऑल्सो स्टैंडिंग, आपके हिसाब से काम हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है? अरविंद केजरीवाल ने हमारे हिसाब से कुछ भी काम नहीं किया है। उनको 10 साल दिए गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस नोट इकट्ठे करके बस पंजाब गोवा में इलेक्शंस करवाए हैं। दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, और अगर मैं आपको पूछूं 10 में से आप सीएम को, जो सीएम रह चुके फिर उन्होंने अतिशी जी को दे दिया, 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 10 में से उनको मैं 2 नंबर भी नहीं देता जी। 2 नंबर भी नहीं? कारण काम ही नहीं किया जी। आपने पिछली बार देखा बरसातों में क्या बुरा हाल हो गया। बरसातों में बेसमेंट में पानी भराया, ना कभी इन्होंने नालों की सफाई करी, ना कभी कुछ उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, सड़कें बनवाई, कुछ उन्होंने काम नहीं किया। काम करेगा तभी जनता देखेगी और वोट देगी, और उन्होंने काम ना करने की वजह से ही इस बार केजरीवाल नहीं आ रहे। आपके हिसाब से केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने 2100 देने का वादा किया है, बीजेपी ने 2500 देने का वादा किया है और कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 देने का वादा किया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो मैनिफेस्टो के हिसाब से बोला है कि हम पैसा देंगे और आपके हिसाब से देंगे? अब उन्होंने जो वादा किया है उनको देना तो पड़ेगा। अगले 5 साल बाद अगर उन्होंने फिर आना है तो उन्होंने अपने वादों को निभाना तो पड़ेगा उनको। और आम आदमी पार्टी बार बार ये अलेज करती है कि एलजी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे पैसे दिए गए सरकार को, दिल्ली सरकार को, पर उन्होंने यूज़ ही नहीं किया उस पैसों का, कुछ काम ही नहीं किया दिल्ली के लिए। और लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, किन दो पार्टियों के बीच में कंपटीशन आपके हिसाब से होगा? कंपटीशन तो नहीं होगा, इस बार भाजपा ही आने वाली है, वही आएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। सो वील ऑल्सो बी अटेम्प्टिंग टू टॉक टू मोर पीपल देयर, यू नो देयर आर मैनी पीपल हु, आपसे भी पूछने का कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? कि अरविंद केजरीवाल जी का काम आपके हिसाब से, आप वोटर है, आप यहाँ रहते हैं, आपने देखा है इलेक्शन काफ़ी टाइम, आपके हिसाब से काम हुआ है कि केजरीवाल जी ने काम किया है, या आपके हिसाब से कोई काम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? हमारे हिसाब से तो भाई कोई काम नहीं हुआ है। जितने साल रहा है केजरीवाल कुछ भी नहीं हो। बोलो हमारे हिसाब से अब तक जो बीजेपी सरकार आएगी, जो पूर्ण बहुमत से जो जीतेगी, और जो लहर चल रही है अब तक बहुत बढ़िया लहर है। हमारे यूट्यूब में है, हमारे फेसबुक में है, केवल मोदी के अलावा और किसी की लहर नहीं है, और वही ही अब तक आएगा। केजरीवाल जी को 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 10 में से उनको 1 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 0% भी आ सकते अब तक बारी, क्योंकि पब्लिक उनसे गुमराह करके जो है काम करते नहीं है यहाँ पे, और पब्लिक गुमराह हो जाती है। कौन सी दो पार्टियों के बीच में आपके हिसाब से कंपटीशन रहेगा? कंपटीशन तो रहेगा हमारे हिसाब से तो केजरीवाल के ही थोड़ा थोड़ा रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, जीतेगी बीजेपी ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो यू नो यू कैन सी दिस इंटायर bustling area also, where there is a lot of you know happenings also that is there, that is also coming, where you see that there is a election mood here, you know, this because this becomes a very important Vidhan Sabha, becomes very important in terms of the politics also that's going to heat up in a while, because today is 3rd and this is also the last campaigning day. So this today becomes the last and final day for all the parties to gear up, because you know they do not have a lot of days, you know, just day after tomorrow Delhi will be there, you know, coming together to choose the CM, whether there will be an old CM, the new CM, we don't know that,
but we can leave it to the people to decide who you want to vote for. Who's winning for you? Who do you think can help you to serve your cause? Because whoever gets elected, whoever is in power, you talk about Aam Aadmi Party, you talk about the BJP, you talk about the Congress, will be working for your benefit, will be working for your own good. So you have to decide who you want to vote for. And even though today becomes a very heated up day, because all the parties, even if it is Congress, it is Aam Aadmi Party, it is the BJP, everyone is struggling to get their people. Campaigning is going on full swing. Aam Aadmi Party is doing the press conferences. Parvesh Verma, BJP is doing all kinds of press conferences to attract their voters, to talk to the media, to talk to the people. But then again, the final call is yours to decide who wins. But it is on you who you want your candidate, who you want to be the new CM. And this is on you who you want to win. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Venkatesh for NewsX Delhi. Keep watching NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.